نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارکہ سے وادی نور میں سنی دعوت اسلامی کا سہ روزہ عظیم الشان سنی اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ بہت سارے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ سنی دعوت اسلامی کے اتنے بڑے سنی اجتماع منعقد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو میں نے بھی چاہا کہ قرآن کی روشنی میں ایسی محفلوں کے فائدے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ آپ کا ذوق و شوق بھی بڑھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ اس اجتماع کے فائدے کو محسوس بھی کر سکیں۔ وادی نور میں 3 چیزیں خاص طور پر ہوتی ہیں۔ پہلی چیز، علماء ذوی الاحترام، مفتیان کرام اور داعیان دین علم کی خیرات تقسیم کرتے ہیں۔ بہت ساروں کو بہت ساری چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی، لیکن وادی نور پہنچنے کے بعد ان کے علم میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ توجہ خاص طور پر اس چیز پر چاہوں گا کہ وہ لوگ جو ممبئی کے رہنے والے ہیں خاص طور پر، یا قرب و جوار کے رہنے والے ہیں، جن کے لیے وادی نور پہنچنا آسان ہے، لیکن سستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ یہ سوچتے ہیں ہم تو آن لائن سن لیں گے، تو وہ ایک فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ اور وہ فضیلت کیا ہے؟ میں پہلے فائدے کی طرف آ رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ لوٹے۔
تو جو نکلے گا نہیں وہی ثواب سے محروم رہے گا. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں نکلنا ہوگا، علم حاصل کرنے کے لیے نکلنا ہوگا، گھر چھوڑنا ہوگا، آرام چھوڑنا ہوگا، بستر چھوڑنا ہوگا. اور بظاہر آپ کو لگے گا کہ محمد علی روڈ سے گزر رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں ہیں. اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہیں جب تک کہ پلٹ کر آپ اپنے گھر نہیں پہنچ جاتے. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، طالب علم کے لیے کوئی ویلکم کرنے والا ہو یا نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معصوم فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں نکلنا چاہیے اور نکل کر علم حاصل کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے پہنچنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ راستہ جس کو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بتایا، اللہ نے اپنا راستہ بتایا، اس راستے کا مسافر بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اب علم حاصل کرنے کے لیے آپ مجمع میں بیٹھیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں بیٹھ کر کے آپ علم حاصل کریں گے تو اس کی بھی فضیلت سماعت فرما لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ کی چادر رحمت اللہ اس بندے پر تان لیتا ہے جو بندہ علم کی محفل کے اندر شریک ہوتا ہے. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کی رحمت کی چادر کے سائے کے اندر وہاں پر ہمارا وقت گزرتا ہوا چلا جاتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین کے راستے پر نکلیں، حصول علم کے لیے گھر سے نکلیں. اور یہ بھی عرض کروں گا کہ تاخیر سے نہ نکلیں، جلدی سے نکلیں. اس لیے کہ جلدی والے پر اللہ کے کرم کی نظر خاص ہوا کرتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے بلاوے پر جلدی انہوں نے کی، اور اس کا ریزن بھی بتایا تاکہ میرے مولا تو مجھ سے راضی ہو جا. جو اللہ کے راستے میں نکلنے میں جلدی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز، آپ جب دین کے راستے پر، علم حاصل کرنے کے راستے پر نکلیں گے تو آپ کا گھر سے نکلنا یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے برابر ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر اللہ نہ کرے موت لکھی ہوئی اور موت واقع ہو گئی تو اس راستے میں چل کر کے جس کو موت واقع ہوتی ہے اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. اب آئیے دوسرے فائدے کی طرف. مجھے 2 فائدے بیان کرنے تھے لیکن 3 کر دیتا ہوں آج. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ زمین پر جہاں کہیں بھی اللہ کے ذکر کی محفل ہو وہ اس ذکر کی محفل کو تلاش کریں. اب جب فرشتوں کو وہ ذکر کی محفل مل جاتی ہے تو فرشتے اس محفل میں شریک ہو جاتے ہیں. محفل شروع ہوتی ہے، فرشتے شریک ہو گئے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ محفل کے اختتام پر فرشتے اس محفل سے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ رب العزت جل جلالہ ان فرشتوں سے فرماتا ہے، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے. تو فرشتے جواب میں عرض کرتے ہیں، مولا
फला जगह पर तेरे बंदे तेरे जिक्र की महफिल में शरीक थे, मुनाकिद की गई थी महफिल, उसमें हम शरीक हुए थे। रब इरशाद फरमाता है मेरे फरिश्तों बताओ मेरे वो बंदे महफिल में मुझसे क्या मांग रहे थे? मौला तुझसे जन्नत मांग रहे थे। फरिश्तों से रब इरशाद फरमाएगा क्या उन्होंने जन्नत देखी है? फरिश्ते अर्ज करेंगे नहीं मौला उन्होंने जन्नत नहीं देखी। रब फरमाएगा अगर वो जन्नत देख लें तो मौला पूरी जिंदगी तेरी याद में और तेरे जिक्र के अंदर खर्च कर दें। अल्लाह अकबर। फिर रब फरमाएगा किस चीज से पनाह मांगते थे? फरिश्ते अर्ज करेंगे जहन्नम से पनाह मांगते थे। रब इरशाद फरमाएगा क्या जहन्नम उन्होंने देखा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे नहीं। रब इरशाद फरमाएगा अगर जहन्नम देख लें तो फरिश्ते अर्ज करेंगे कभी गुनाह नहीं करेंगे। अब फरिश्तों से मौला फरमाता है बताओ मेरे उस जिक्र की महफिल में शरीक होने वालों को क्या बदला दिया जाए? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तू बेहतर जानता है। रब इरशाद फरमाएगा जाओ मैंने सबको बख्श दिया। तो फरिश्ते फौरन अर्ज करेंगे मौला एक बंदा ऐसा भी उस महफिल में आया था जो जिक्र की महफिल के अंदर शरीक होने के इरादे से नहीं, वहां से गुजरा और महफिल देखा तो आकर के बैठ गया। मौला उसके लिए क्या हुक्म है? तो रब इरशाद फरमाएगा मैंने उसको भी बख्श दिया। तो अपनी तवज्जो और अपनी नीयत ये करके निकलें कि अल्लाह जिन खुश नसीबों की बख्शिश फरमाने वाला है अल्लाह ताला उन खुश नसीबों में हमारा भी शुमार फरमा ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तीसरा फायदा वो जिस आयत की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया वो आयत करीमा उसी फायदे की तरफ रहनुमाई कर रही है। आदमी अकेले में भी तौबा करे, इनफरादी तौर पर भी तौबा करे, उसकी तौबा सुनी भी जाती है और अल्लाह करीम करम फरमाकर कबूल भी फरमाता है। लेकिन रब ने इरशाद फरमाया, कुर्बान जाइए उसके इरशाद पर, फरमाते हैं वतूबू इलल्लाहि जमीआ अय्युहल मुमिनून, ऐ ईमान वालो तुम सब मिलकर अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। अलोन की बात नहीं की गई, मोमिनो सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। मौला सब मिलकर के तौबा करेंगे तो क्या होगा? तो अल्लाह फरमाते लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम्हें कामयाबी से हमकिनार किया जाए। तो आप देखते हैं कि वादी नूर के अंदर तौबा मैं अगर लाखों में कहूं, हजारों में कहूं, सैकड़ों में कहूं तो हो सकता है लाखों में कहूं तो कोई कहे मुबालगा कर रहा है, हजारों में कहूं तो कोई कहेगा कि कम बोल रहे हैं, सैकड़ों में कहूं तो लोग कहेंगे हजरत ये तो बिल्कुल नहीं था बल्कि हजार लाखों की तादाद में थे। मुझे नहीं मालूम कितने आते हैं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं अल्लाह के बंदे आते हैं, यहां तक आते हैं, इतनी तादाद में आते हैं कि वादी नूर आजाद मैदान ये कहता हुआ नजर आता है अब बस करो मुझ में गुंजाइश नहीं है, तंग होता हुआ नजर आता है। लेकिन वहां आकर आपने देखा होगा कि जो कभी नहीं रोए वो भी वहां पर अपने गुनाहों को याद करके रोते हैं, तौबा करते हैं, इस्तिगफार करते हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इज्तिमाई तौबा का मौका वादी नूर में आपको नसीब होता है कि लाखों की तादाद में कहिए या हजारों की तादाद में कहिए गुलामान रसूल वहां पर हाजिर होते। कुरान ने कहा अय्युहल मुमिनून, यानी गुलामान रसूल। अब वहां सब तौबा करते हैं, किसी एक की आमीन के सदके में अल्लाह सबका बेड़ा पार फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 40 मुसलमानों में एक अल्लाह का नेक बंदा होता है। मुमकिन है इतने लोगों की तादाद में कोई तो बंदा ऐसा होगा जिसके सदके में अल्लाह करम की नजर फरमा देगा। तो आप इस चीज को जहन में रखें कि वहां पहुंचना है,
लोगों को लाना है, घरों से निकलना है, अल्लाह के जिक्र की महफिल में शरीक होना है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में तोहफे दुरूद व सलाम भी पेश करना है, और साथ ही साथ अल्लाह का जिक्र भी करना है और इल्म भी हासिल करना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के जिक्र का क्या कहना कि सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन और मुख्तलिफ मशाइख का ये कौल मिलता है जो कहते हैं हमें पता चल जाता है कि हमारा रब हमें कब याद करता है। उनसे कहा गया आपको कैसे पता चलता है? इरशाद फरमाते हैं जब हम रब का जिक्र करते हैं तो रब भी हमारी याद फरमाता है, हमारा तस्करा फरमाता है, इसलिए कि उसका फरमान है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये न समझना कि वादी नूर में आप ही पहुंचते हैं या वादी नूर में हम ही लोग पहुंचते हैं। मैंने एक ऐसे बुजुर्ग से मुलाकात की जिनके बारे में लोगों से मैंने सुन रखा था कि वो मुस्तजाबुद दावात हैं। उन्होंने एक ऐसे पेशेंट के बारे में जिसके बारे में डॉक्टरों ने ये साफ लफ्जों में कह दिया था कि इनके बचने के कोई इम्कानात नहीं, इनको कैंसर लास्ट स्टेज पर है। वो पेशेंट वो बुजुर्ग के पास पहुंचा, बुजुर्ग ने देखा और फरमाया जा तेरी तबीयत ठीक हो गई, तुझे कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला ने बाद में चेकअप कराने पर उस पर वाज़ेह कर दिया कि उसकी सारी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं। मेरी उस बुजुर्ग से मुलाकात हुई। मैं देखिए आमतौर पर आप जानते हैं कि मैं कोई इस किस्म के वाकयात और इज्तिमा में ये होता है वो होता है ये सब चीजें बताने का आदी नहीं हूं। आज तक 31 साल के अंदर कभी ये सब चीजें मैंने नहीं बताई। मैं सिर्फ आपको एक ऐसी हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपकी तबीयत के अंदर ये बात पैदा हो कि वाकई वहां पर कैसे कैसे लोग आते हैं। मेरी इत्तेफाक से फ्लाइट, मेरी उमूमी तौर पर मेरी आदत है दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो प्रोग्राम के बाद की जो पहली फ्लाइट होती है मैं पहली फ्लाइट लेकर आ जाता हूं। लेकिन उस बुजुर्ग के बारे में जब इत्तला मिली तो मैंने वहां से शाम की फ्लाइट का इंतजाम किया कि मैं जाकर उनसे मुलाकात करूंगा। मैं गया मिलने के लिए तो उनकी जबान अव्वल तो समझ में नहीं आती थी, केरला के हैं वो, जबान समझ में नहीं आती थी। एक दरमियान में उर्दू में उनकी बात को ट्रांसलेशन करने वाला वो जो था वो था। उनको जब इत्तला मिली मैं आ रहा हूं तो बहुत खुश हुए, बहुत दुआएं दी और फिर उन्होंने मुझसे फरमाया कि मैं एक मर्तबा वादी नूर के इज्तिमा में हाजिर हुआ था। और फिर एक ऐसी बात उन्होंने कही कि उनकी बात से उनके मुस्तजाबुद दावात होने पर बिल्कुल मोहर लग गई। वो बात ये थी कि उस जमाने में अपनी तारीखों में इज्तिमा की तारीख जो अपनी होती थी उसी में कुछ गैर लोग भी इज्तिमा करते थे। उन्हीं तारीखों में एक डॉक्टर था वो इज्तिमा करता था उन्हीं तारीखों में, कभी आगे पीछे हो जाए वरना सिमिलर तारीख होती थी। तो बुजुर्ग मुझसे फरमाने लगे कि मैं जब मैदान में आया और मुझे पता चला तो मैंने वहीं अल्लाह की बारगाह में दुआ की वादी नूर में बैठ के कि अब उसका नहीं होना चाहिए। उसके बाद से उसका मामला ही खत्म हो गया। तो हमें पता ही नहीं होता कौन आता है, कैसे लोग आते हैं, क्या होते हैं। अल्लाह के अजीम नेक बंदे, और जाहिर सी बात है हम तो क्या है कि वलियों के गुलाम हैं, उनके कदमों की खाक हैं, उनके कदमों की खाक हैं। हम तो पहले मखदूम माइमी की बारगाह में अर्ज कर देते हैं, फिर बाउद्दीन शाह बाबा की बारगाह में अर्ज कर देते हैं, पूरा इज्तिमा उनके सुपुर्द कर देते हैं कि आपकी नगरी में हो रहा है, आप जाने और आपका काम जाने। तो वो ऐसा करम करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बेड़ा पार हो जाता है।
कहने का मकसद ये है कि आप अच्छी नीयत से आए, हुस्न नीयत के साथ आए। अल्लाह करम फरमाने वाला है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाने वाले हैं, और साथ ही साथ अच्छी नीयतों के साथ आप निकलें, दीन सीखने की गरज से निकलें और जिक्र इलाही में शामिल होने की नीयत से निकलें, तौबा इस्तिगफार की नीयत से निकलें। इंशाअल्लाहुल अज़ीम इल्म हासिल करने की तड़प, तौबा इस्तिगफार की नीयत, जिक्र इलाही का जज्बा, इन सारी चीजों की बुनियाद पर अल्लाह जरूर करम की नजर फरमाएगा और रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तुफैल अल्लाह ताला जिंदगियों में इनकलाब पैदा फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप बहैसियत मेजबान हैं, मुंबई के लोग हैं, आपको बड़ी जिम्मेदारियां निभानी हैं। कोई ऐसी चीज आपको वहां पर नहीं करनी जिसकी बुनियाद पर बदनज़मी पैदा हो या टेंशन क्रिएट हो। आपने किसी किस्म का नारा या नारेबाजी वगैरह से भी परहेज करना है। सुकून से बाअखलाक बनकर शराफत के साथ और अच्छी तरीके से आप वादी नूर के इज्तिमा में शरीक हों और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ते हुए पहुंचें। और अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम लोग यहाँ से वादी नूर के लिए भी निकलेंगे और वहां पर इंशाअल्लाह काम का आगाज भी आज हो जाएगा इंशाअल्लाह। अब आज के बाद से आपकी ड्यूटी ये है कि पूरे मुंबई को खंगालो। क्या करना है? पूरे मुंबई को खंगालो, कोई बाकी न रहे, सबको वादी नूर आने की दावत दो। करेंगे आप लोग इंशाअल्लाह? मुझे जैसा जवाब चाहिए थोड़ा सा और मजबूत इंशाअल्लाह। और ये नीयत कर लो कि हम अल्लाह की रजा ही के लिए करेंगे और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी ही के लिए करेंगे। अल्लाह राजी हो गया, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए तो दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी इंशाअल्लाह संवर जाएगी। हाँ, एक जरूरी ऐलान, कोई भी साहब गाड़ी लेकर मैदान में न जाए। देखिए डे बाय डे जो है ना वो कानून बदलता रहता है और अहकाम बदलते रहते हैं, हमें उन सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो आपने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है। मैदान में गाड़ी लेकर के बिल्कुल कोई एंट्री ना करे, मेहरबानी करके, इसलिए कि गलती आपकी होगी, परेशानी सबको होगी। तो मैदान के अंदर कोई भी गाड़ी लेकर के न जाएं। रास्ते में भी जाएं तो आपकी चाल बता दे कि आप मदीने वाले के दीवाने हैं। आपकी चाल बता दे, जैसा कि कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने रहमान के बंदों की चाल बताई कि वो चलते कैसे हैं। कुरान कहता है व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना। रहमान के बंदे जमीन पर जब चलते हैं ना तो बहुत शाइस्तगी के साथ, खरामा खरामा, उनकी चाल देखकर समझ में आता है कि ये रहमान के बंदे हैं। भाई आप मुझे बताइए ना, अच्छी चाल होगी तो लोग मोहब्बत करेंगे, आप यूं चलेंगे तो लोग मोहब्बत करेंगे आपसे। लेकिन आप बिल्कुल निगाहें नीची करके चलिए, आदमी के कितना शरीफ इंसान जा रहा है। तो चाल भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो। तो आप यहां से जब चलेंगे वादी नूर के लिए तो बिल्कुल शाइस्तगी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, नारेबाजी बिल्कुल कतई तौर पर न हो, बहुत आराम से वादी नूर जाएंगे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये चंद कलिमाते खैर थे जो मैंने आपकी समाअतों के हवाले किए और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह अज़ीम आप इन बातों को जहन के अंदर रखेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने अपने इलाके के मस्जिद के अइम्मा से भी गुजारिश करें, दोस्त अहबाब मुतल्लिकीन से भी गुजारिश करें और कसीर तादाद में वादी नूर आज़ाद मैदान पहुंचने की कोशिश करें। अल्लाह हम सब पर करम की नजर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।